Thank you, Mr. Tabrez, sir, the vibrant faculties of and director of ARCC. I still recall the day that when he used to come to Gaya, he was very laborious since beginning. शुरुआती दौर से सर बहुत मेहनती थे. And today I am seeing that you the people are so laborious also. और आप भी मेहनती हैं सर की तरह. First of all, I would like to say sorry for being late. देर से आने के लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा. But because of the hectic schedule, I couldn't be here. बहुत काम था, बहुत सारे दिन. सर की इतनी मोहब्बत थी. It was love of Tabrez sir that compelled me to be here. जिसने मुझे मजबूर किया यहाँ आने पे. सर ने इतने प्यार से बोला कि सर आपको आना है तो बिल्कुल आना है. Well, so Tabrez sir, you are doing an excellent job, excellent activities, and it was beyond my expectation. When I was coming to Rafiganj, I thought that it was a simple institute, but today I came to know that ARCC is not a simple. It is a brand, and inshallah it will be a great brand in coming days more and more. I would like to thank Mr. Bihari sir who accompanied me today, जिन्होंने मेरा साथ दिया, and we came from Gaya today. Aqib sir and one more sir, Javed sir, for your good speech. It was inspirational. The students who have shown a great speaking power today. आप सभी में एक बहुत ही अच्छी लगन है. Content doesn't matter. The matter is that how you are speaking. Contents, इस उम्र में contents का बहुत expectation नहीं किया जा सकता है. Contents मतलब जो चीज़ें आप बोल रहे हो उसके अंदर जो चीज़ है, जैसे एक बक्सा होता है, एक डब्बा होता है, उसके अंदर जो भरा चीज़ जाता है उसे content कहते हैं. तो the content is not important. The important is that you are speaking. That is the best thing that I observed today by coming over here. यहाँ पर आकर जो मैंने देखा, आप में जो कॉन्फिडेंस सर ने जो क्रिएट किया है और सर की जो मेहनत आपके पीछे लग रही है, द लेबर ही इज़ पुटिंग बिहाइंड यू, दैट इज़ प्रेसवर्दी. एंड यू नो दैट इफ़ यू गेट अ गुड टीचर इन योर लाइफ ना, यू बिकम सक्सेसफुल. जब ज़िंदगी में आप अच्छे शिक्षक पा लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो. गेटिंग अ गुड टीचर इज़ लाइक ए ब्लेसिंग इन दिस मॉडर्न एरा, इन दिस प्रोफेशनल एरा. इस पैसे के युग में, इस मटेरियलिस्टिक दौर में जहाँ हर कुछ पैसे से ही रिलेटिव होता है, इस दौर में अगर आपको एक अच्छे टीचर मिल जाते हैं जो आपको भाई की तरह, दोस्त की तरह पढ़ाने को तैयार हैं, तो आप यू आर लकी वन. आप एक बहुत ही भाग्यशाली हो, खुशकिस्मत हो. एंड आई थिंक दैट यू आर द लकी वन. आप बहुत ही खुशकिस्मत हो बिकॉज यू हैव गॉट द एजेस ऑफ Tabrez sir. You have got the guidance of Tabrez sir. He is doing an excellent and outstanding performance over here. बहुत ही अच्छा नाम, इनका नाम गया शहर तक है. एंड द पीपल हु यूज्ड टू बी एक्वाइंटेड विद मी, जो मेरे टच के हैं रफ़ीगंज के, इफ़ दे आस्क सम, तो आई रेफर ARCC ओनली, ऑल राउंड कम्युनिकेशन सेंटर. एम आई राइट? दिस इज़ व्हाट द ब्रांड. गुड. सो नाउ व्हाट इज़ योर ओनस? अब आपकी ओनस क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? योर ओनस इज़ दैट टू मेक दिस गार्डन बिगर एंड बिगर. इस गार्डन को और बड़ा करें. Cooperate, support your sir economically, physically, and mouth advertisement. That is the best thing that you can do. If you are putting some student over here more and more and guiding the student and telling them that ARCC is a good for spoken English, written English and grammar, etc. So you are helping them basically. आप उन्हें एक सहायता दे रहे हैं. Guiding the student for the right coaching, right institute is a kind of help that you can do with them. एक सही अपने दोस्त के साथ उपकार आप कर सकते हैं जब अपने दोस्त को सही जगह ला करके. सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो दिस इंस्टीट्यूट मोर एंड मोर सो दैट Tabrez sir कैन बिकम एन आइकन नॉट ओनली इन औरंगाबाद और रफ़ीगंज बट इन होल बिहार. दैट इज़ व्हाट माय. Your speaking power. Now I would like to come that your speaking power. You should not think that you're hesitating, you have lack of content. No. The fact is that in my 18 years of career of teaching English, what I observe with the students of different category in Bihar and Jharkhand and even Delhi, that the student don't know, you feel that you don't know English, but the fact is not that you don't know English, the fact is that you even don't know Hindi. देखिए, आप जब कोई टॉपिक पर बोलते हो ना तो आपको ये लगता है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है. बट सच्चाई ये है कि इंग्लिश नहीं आती है ये नहीं सोचना है. सच तो बात यह कि आपको हिंदी भी नहीं आती. मीन्स अगर आपको हिंदी में 10 मिनट इंडिया पर कहने को बोल दें,
For example, if I tell you to speak something on India for regular 10 minutes, so आप हिंदी में बोलेंगे भारत एक बड़ा देश है, महान देश है, ब्ला ब्ला ब्ला, बोलने के बाद आप खुद रुकने लगेंगे. You know why you are stopping? आप रुक क्यों रहे हैं? Because you don't have the idea, you don't have the knowledge even in Hindi. So what happen when sir tell you कि आपको आकर इंग्लिश में बोलना है इंडिया पर, तो आपको लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो, बट द रियलिटी इज दैट कि आप हिंदी में भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट की कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है. एंड नॉलेज कम्स, आइडिया कम्स, कंटेंट्स कम, पॉइंट कम विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट. बहुत पढ़ करके, बहुत लिख करके, बहुत चीज़ों के बारे में जान करके ही आपको किसी चीज़ के बारे में पता लगाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, इस पेन के बारे में बोलना है तो प्लास्टिक का पेन है, बना हुआ इतना हार्ड है, लेकिन आप साइंटिफिक इसके बारे में पढ़ लोगे, हार्डनेस क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो कुछ तो पॉइंट बढ़ गया. आप इसकी लाइफ के बारे में पढ़ लोगे, कब तक प्लास्टिक रह सकता है, कितने दिन में रिसाइकिल हो सकता है, कहाँ से बनता है, प्रोडक्शन क्या है, यूनिट क्या है, कितने की मैन्युफैक्चरिंग है, कितने में बनता है, कितने बिकता है, और पॉइंट बढ़ गया ना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब इंग्लिश में बोलते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है. इंग्लिश तो आपको आती है माशाल्लाह, आपको कंटेंट की कमी हो रही है बस. तो कंटेंट कब आएगा? आइडिया किसी चीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा. फिर अगर आप हिंदी में भी 10 मिनट बोल रहे हो इंडिया के बारे में, तो आप इंग्लिश में बोल लोगे, नो इशू. तो ये कनेक्शन होता है, दिस वॉट द कनेक्शन. आवर माइंड वर्क्स व्हेन वी हैव सम पॉइंट इन माइंड. आवर माइंड कैन नॉट वर्क व्हेन वी डोंट हैव द पॉइंट इन माइंड, राइट. सो अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो अगर आप इंग्लिश हिंदी में ही पता नहीं है बहुत सी बातें, तो आप इंग्लिश में कैसे बोल पाओगे, राइट. तो दैट्स वही, आपको ये नहीं कभी सोचना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है. इंग्लिश आपको आती है, बस आपको थोड़ा सा आइडियाज़ का कलेक्शन करना होगा व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक एट बिग थिंग्स, राइट. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. जब मैं व्हेन आई कम ओवर हियर तो देखा मैंने एक बच्ची बोल रही थी, बहुत अच्छा डिसिप्लिन पर था. फिर और भी टॉपिक्स आए, सक्सेस पर आया. शुरू में आपको रटना होगा, यू हैव टू मेमोराइज सम पॉइंट्स, ठीक है. लेकिन मेमोराइजेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश. मेमोराइजेशन कैन गिव यू ए पाथ. तो रट करके आपको बोलना है, लेकिन सब कुछ आप रट के नहीं बोल सकते हो. कोशिश करना है, सर पढ़ाते भी होंगे आपको, कि आप कैसे माइंड में चीज़ें आई और उसको ट्रांसलेट कर लो. द थिंग इज़ कमिंग इन टू योर माइंड, इट इज़ गेटिंग ट्रांसलेटेड जस्ट विद इन ए कपल ऑफ सेकेंड्स. जब ये पावर आपके अंदर आ जाएगा तो आप किसी भी टॉपिक पर घंटों बोल सकते हो. यू कैन कंटिन्यू स्पीक ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन द डिफरेंट इशू फॉर द आवर्स. घंटों बोल सकते हो. व्हाट आई एम टेलिंग, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. अभी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ. स्पीड वही है, कंटेंट वही है, चीज़ें वही है. दिस इज़ व्हाट द नीडेड. यही इसी की ज़रूरत है आज के दौर में. और सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं, सर का साथ दीजिए बढ़िया से, अच्छे से, एंड ट्राई टू क्रिएट अ नेम. एक नाम पैदा कीजिए, नाम अपने इंस्टीट्यूट का नाम. आप यू कैन नॉट गिव एनीथिंग टू तबरेज़ सर. आप तबरेज़ सर को कुछ नहीं दे सकते हो. क्या दोगे? 500 400 मंथली दोगे, उससे क्या होने वाला है? नथिंग. इससे ज़्यादा तो ये और भी चीज़ें कमा लेते हैं. बट द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग ना, यू शुड गिव योर सक्सेस. अगर आप कुछ ARCC को देना चाहते हो, तबरेज़ सर को देना चाहते हो, अपनी कामयाबी दो. मैं चाहता हूँ बड़ा बड़ा फ़ोटो लगा रहे आपका, आपके नामों का, कि इसने ये किया, वो किया. तो ये सर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा. और दिस इज व्हाट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेक विद द इंस्टीट्यूट. और ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होगी जो आप अपने संस्था को देते हो. लुक, कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है. It doesn't matter how much you're contributing, but it does a great matter when you contribute something in a very proper manner. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कंट्रीब्यूशन 1 रुपये का है या 1000 रुपये का है. लेकिन अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में, तालीम के एतबार से और अपनी कामयाबी के एतबार से, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी. तो ARCC को ज़रूरत है अब आपके रिज़ल्ट की, अब आपके कामयाबी की. सर को और ग्रो कीजिए आप लोग मिल करके. मैं चाहता हूं कि पूरा औरंगाबाद में ARCC का टक्कर का कोई ना रहे, ऐसा हो जाए और बेहतरीन एक ब्रांड बने, गया में भी नाम रहे. ओके, मज़ा आए. आई होप सर. सच पूछो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर सक्सेस. बहुत ही खुशी हो रही है सर की तरक्की देख के, आपकी तरक्की देख के दिली सुकून मिल रहा है. ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई की तरह हैं. आई लव हिम अलॉट. बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे, और हर एतबार से, हर तरह से मैं तैयार हूँ इनके लिए. इसलिए अभी कोरोना काल चल रहा था. फॉर द 7.5 months वी आर क्लोज्ड.
अभी तक गया मैं, अभी तक सब कुछ बंद है। 15 अक्टूबर से खुलेगा, 7.5 महीने से बंद है। बट उसमें पता चल गया अपने कौन है, पराये कौन है। कोरोना हैज़ टाउट अ लॉट ऑफ थिंग टू अस। कोरोना ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखा दिया है। ओके, ईश्वर का, अल्लाह का जो अज़ाब था वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अपने कौन है, पराये कौन है वो भी देख लिया। तो अब आप लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि सर देखिए, आप पढ़ के यहाँ से जाओगे, व्हेन यू कंप्लीट योर कोर्स ओवर हियर, यहाँ से करने के बाद एक टच रखना सर के साथ। जब पुराने स्टूडेंट सर को याद करेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। सर ने 1000 10,000 बच्चों को पढ़ा दिया होगा, लेकिन शायद 5000 बच्चे इनसे मिलते होंगे, 5000 शायद नहीं भी मिलते होंगे या कभी कॉल भी नहीं करते। मेरे साथ भी हुआ। हर स्टूडेंट टीचर को याद रख ले ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन टीचर हर स्टूडेंट को याद रखता है मोटा मोटी, कहीं पर मिलोगे चेहरा पहचान लेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके ज़िंदगी में एक अच्छे टीचर आ रहे हैं तो वो आप एक लकी वन हो। इसलिए आपको ये कोशिश करना है कि आपको सर ने जितने प्यार से पढ़ाया, जितना गाइडेंस किया, उसको रीपे करने की कोशिश करना। रीपे, आई डोंट मीन टू पे फ्रॉम मनी। रीपे का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे से ही रीपेमेंट करें, कई एंगल हो सकता है उस रीपेमेंट का। तो आई विल एक्सपेक्ट कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर दिस इंस्टीट्यूट इन कमिंग डेज, एंड आई विल एक्सपेक्ट दैट मिस्टर तब्रेज़ सर विल बी अ boon for you, or I hope that you the people are going to be in touch regular with the ARCC. Thank you so much for giving me an opportunity to interview. ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे और टीचर ज़्यादा पकाते थे तो लगता था कि, बट आई एम नॉट हियर टू गिव यू इंस्पिरेशनल स्पीचेस एंड लाइक दैट। वो तो सर लोग कर ही रहे हैं। कुछ कहानियाँ सुना दें, कुछ अच्छी बातें कर दें, वो सब तो होता रहता है क्लासेस में ही। और इतने यूट्यूब पे कंटेंट्स हैं, आजकल की चीज़ें अवेलेबल हैं। बट द थिंग इज़ दैट क्रिएटिविटी लाना है आपको अपने अंदर, ये इसको ध्यान दीजिएगा। अपने अंदर जब तक आप अनोखापन नहीं लाएंगे ना, आप कामयाब नहीं होंगे। भीड़ के पार्ट नहीं, भीड़ से अलग बनना है। आई वॉज गिविंग अ लेक्चर इन मेरठ, JP कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट। तो मैं JP कॉलेज में स्पीच दे रहा था, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि सर हु इज़ सक्सेसफुल। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ MBA एंड आई वॉज डिलीवरिंग लेक्चर ओवर दियर। तो वहाँ पर हमने कहा कि अब बहुत बड़ा सवाल है कि हु इज़ सक्सेसफुल। एक हमारे प्यारे स्टूडेंट ने कहा कि सक्सेस डिफरेंट वैरी करता है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है। किसी इंसान के लिए मैट्रिक में पास करना ही सक्सेस है, किसी इंसान की इंटर में पास कर जाना सक्सेस है, किसी के लिए महीने में 20,000 रुपये कमा लेना सक्सेस है, किसी के लिए महीना में 2 लाख कमाना सक्सेस है। तो इट इज़ राइट कि सक्सेस डिफरेंट वैरी करता है, इंसान की सोच के हिसाब से ही सक्सेस वैरी करता है। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड, शी वॉज ए गर्ल बेसिकली। उसने पूछा बहुत ही टफ क्वेश्चन कि सर हु इज़ सक्सेसफुल। मेरा एक नक्शल आंसर था कि अ पर्सन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इज़ सक्सेसफुल। एक इंसान जब दूसरों से कुछ अलग होता है ना, वही कामयाब होता है। तो आपको अलग बनना है, टैलेंट में, एजुकेशन में, पढ़ाई में। अलग मतलब ये नहीं कि कल को हम हाफ कटिंग बाल काट के आगे वाला सर हम अलग हो गए, आप ही कहा था, ठीक है, वो अलग नहीं। अलग पढ़ाई में होना। द डे यू बिकम डिफरेंट इन स्टडी ना, आप सक्सेस हो जाते हो। देखो इंसान 2 ही तरीके से बड़ा, 2 ही रास्ता है बड़ा बनने का जो मैंने ऑब्जर्व किया। देयर आर द 2 वेज ओनली फॉर गेटिंग सक्सेस। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है भैया कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो आजकल लोग कर नहीं पाते हैं। आज के दौर में किताबें पढ़ने का चलन कम हो गया है। जब से ये नेट वेट आया ना, तो लोग दिल नहीं लगता तो थोड़ा सा यूट्यूब देखा घंटों लग गया, तो आजकल पढ़ने का चलन कम हो गया। तो पहला रास्ता अच्छी आप किताबें पढ़ें, रीड गुड बुक्स। सेकंड ऑप्शन है कि अच्छे लोगों से बात करें, टॉक टू द गुड पीपल्स। व्हेन यू टॉक टू द गुड पीपल ना, यू बिकम सक्सेसफुल। तो अच्छे लोग, बड़े लोग आपको समय नहीं देंगे। अब आप चाहोगे कि तब्रेज़ सर से आप 2 घंटा बात कर लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल होगा। तो अच्छे लोगों के पास वक्त होता नहीं है ज़्यादा आपसे बात करने, क्योंकि आप जब अच्छे लोगों से बात करोगे ना, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम। आप उनसे कुछ ना कुछ सीख लोगे। सर से अगर 1 घंटा आप बात करोगे तो 1 घंटे में ना जाना आप क्या क्या सीख के चले जाओ। बट सर अगर हर स्टूडेंट को 1 घंटा बात करेंगे तो सर के पास टाइम नहीं होगा। उसी तरीके से जितने दुनिया के बड़े लोग या अच्छे लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं बात करने का, राइट। तो वो रास्ता बिल्कुल बंद है। बचा अच्छी किताबें पढ़ने का रास्ता, वही खुला हुआ है। अच्छी किताबें पढ़ें और सर से गाइड लें, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग